Hello. Yes, Pramod, you can mute yourself. Pramod Paithankar. Hello. Mayur Gaikwad, mute yourself. Pramod Paithankar, roll number 65, mute yourself. In the chat box, everybody, in the chat box, your attendance, please. Yeah. Yes, ma'am. Pramod, mute yourself, beta. Hello, Pramod. Pramod, you can mute yourself. Okay, now let's start here. Okay. Yes. Okay. Yeah, yes. I was just seeing your question papers, you know, like your previous question papers, I was just observing. So it has come like this question, like whatever question now I'm going to give, this is all entire university question papers we are going to solve today. Okay. So this photo I have clicked, and this is round about some 3-4 years before question paper. So I have taken this and I'm going to send you. I'm going to send the pic to you. Okay. So whatever I have just observed all the question papers for you all. I was just wondering like what type of questions are coming for bankers. So whatever important questions I have found it, I'm going to solve you. Okay. We are going to solve it today. Now, I'll just stop the camera. I'll just show you here. Share the screen. Okay. Who's disabled? Sir, Vak sir. Hello, Vak sir. Okay. Host disabled. Yes, ma'am. वाक सर मैं शेयर नहीं कर Hello? पा रही हूँ स्क्रीन. वाक सर शेयर नहीं कर पा रही हूँ स्क्रीन को. एक सेकंड. हाँ. अभी देखो. Share the screen. Yes, sir. I'm able to share. Okay. Thank you. So, yeah, everybody can see the screen, right? Hello. Yes, ma'am. Yes. So this is just last year ka question paper hai. This is asked. So we are going to solve what? We are going to solve everybody. We are going to solve the same question paper, the same asked. Again, this is here 0012 0012 1520. Again asked in 1920. Again 0012 1520. So this problem has come consecutive. Twice it has come. So we are going to solve it. Okay. And any other questions are there? Third question I'm going to give you. So we are going to solve this. Okay. Now, okay, wait. Yeah. So we'll be solving now. Everybody. Yes. पहला वाला क्वेश्चन बाकी है ना अपना. Hello. Yes, ma'am. Yeah. So this is पहला वाला क्वेश्चन अपना बाकी है. Okay. So हम लोग कहाँ थे? We will. Okay, dear. Now I hope. See here the same topic na. Even HOD sir is going to take on Wednesday. Next coming Wednesday, he is going to take on bankers algorithm. Clear? Okay. So, but let us. I mean, we'll just solve it roughly. We will solve it. We will understand so that on Wednesday, coming Wednesday, when he takes, so he'll take in a bit higher level. So at least you all know the basic of bankers algorithm. Okay, dear. तो मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? I was short revision in 2 minutes. I'll just finish.
I'm teaching you the C part. I'm teaching you the C part, and that C part is called deadlock. It's a huge concept basically. In deadlock, there are two types basically. There is one avoidance and one is prevention. Deadlock मतलब क्या है? एक process एक को already पकड़ के रखता है and दूसरे की demand करता है. He is requesting something else. तो ना ये release करता है. This is called hold and wait. This method is called hold and wait. You're holding something, you're not releasing and waiting for something else. Same P2 is doing, same P3 and the entire chain is there and that's why we find deadlock. तो उन्होंने क्या किया यार, कैसे इसको सॉल्व करें? तो सॉल्व करने के लिए दो मेथड मिला, एक अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन. अवॉइड कैसे करते? ओके, सो व्हाट इज हाउ टू अवॉइड इट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन? एनीवन? प्रिवेंशन मतलब सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही अवॉइडेंस हम मतलब जो, और सिचुएशन क्रिएट होने के बाद हम अवॉइड करते हैं ना. Okay, who will tell me this properly? Avoidance and prevention almost same है, लेकिन this is one of the very favorite question. मेरे को इंटरव्यू में पूछा था, what is the difference between deadlock avoidance and deadlock prevention? Okay, चलो मैं इसको. अवॉइडेंस मतलब निग्लेक्ट करना. हाँ, और प्रिवेंशन मतलब उससे पहले प्रिकॉशन लेना मैम. उससे ओके, आई विल जस्ट यहाँ पे ही हम लोग सब उसको लोग प्रोटेक्ट करना. प्रॉपर, हाँ, क्योंकि जिसको भी आ जाएगा. ओके, रिमेंबर यू विल हैव योर प्रैक्टिकल. डोंट लिख कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा, पक्का होगा, जैसे भी होगा होगा. ओके, सी इन डेडलॉक अवॉइडेंस एवरीबडी कैन. ओके, सॉरी, आई वांट टू शेयर इट. ओके, शेयर. See here. In deadlock avoidance, the maximum number of resource of each type that will be needed are stated at the beginning of the process. We'll see something geeks of geek site. This is my favorite site. So we'll just see. आपको definition proper देना होगा external को. Cannot be given randomly. Okay, I just want a proper definition. What is the difference between deadlock prevention and deadlock avoidance? Avoidance. I want, what is the difference between deadlock prevention? See, this is a very favorite question of any interview questions. Okay, advance. Okay, now listen dear, actually in short I'll tell you, deadlock avoidance क्या है? हम लोग avoid ही कर रहे हैं. हम लोग, remember, hello, everyone can hear me, right? In very short I'll tell you, deadlock avoidance मतलब ये दुर्घटना होनी ही नहीं चाहिए. ऐसा कभी होनी ही नहीं चाहिए कि बैंक 0 पर चला जाए. तो हमने क्या करना है? तो उसके पहले ही बैंक ने पहले ही सारा फॉर्मूलाज तैयार कर लेते हैं और बिल्कुल फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं. रिमेंबर, बैंक गोज 1% 0.% भी इधर का उधर नहीं करता. एडजस्टिंग, दिस नथिंग कॉल्ड एडजस्टिंग. तो डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब बैंक करप्ट कभी होता ही नहीं, दूर दूर से नहीं, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? डेडलॉक एक बार हो चुका है, अब आगे नहीं होनी चाहिए. क्या करूं? रिमेंबर, देयर आर नो 4 मेथड्स होता है. अगर एक भी नेसेसरी कंडीशन होता है, अगर एक भी कंडीशन हो गया तो मैं क्या करूं? यानी प्रिवेंशन में एक बार डेडलॉक हो जाता है, अब मैं आगे क्या करूं? डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब होनी ही नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? दैट इज कॉल्ड डेडलॉक अवॉइडेंस. क्लियर ऑल ऑफ यू? प्रिवेंशन मतलब बुखार आ गया है, अब मैं क्या करूं? डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब बुखार आनी ही नहीं चाहिए. जैसे सिंपल करो ना, आनी नहीं चाहिए तो हम लोग काढ़ा पीते, दवाई खा रहे, होम्योपैथिक दवाई खा रहे, आनी नहीं चाहिए. और प्रिवेंशन मतलब हो गया है, अब मैं क्या करूं? सो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन. मैं क्या करूं कि ऐसे कंडीशन ही ना आए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ. क्लियर? क्लियर? यस. सो दिस इज बेसिकली, इफ आई एम एबल टू गेट, मीनवाइल आप जब सॉल्व करोगे, मुझे अच्छा से अगर कोई डिफरेंस मिल गया है तो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ. ठीक है? बिकॉज वी वांट इट इन अ वेरी प्रॉपर फॉर्मेट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू द एक्सटर्नल. ठीक है? सो दिस इज ऑलमोस्ट द मीनिंग सेम ही है. चलो हम लोग आगे के सॉल्व करते हैं. ठीक है? तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे. अभी आप बोलोगे कि मैम मैंने बैंकर्स क्यों लिया? बैंकर्स अवॉइडेंस में इसलिए लिया क्योंकि बैंकर्स की सिस्टमैटिक्स रहता है. कभी भी कोई बैंक, बहुत रेयर बैंक होता है जो बैंकरप्ट हो चुका है, जिसका 0 पर हो जाता है. ओके,
ओके तो वेरी रेयरली होता है, तो इसलिए ये सारा प्रोसेस को हैंडल करने के लिए बैंकर का जो एल्गोरिथम है वहां से उन्होंने कंसेप्ट उठाया। तो इसलिए हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम पहले पढ़ रहे हैं कि बैंक ऐसे कैसे कंसेप्ट करता है कि डेडलॉक होता ही नहीं, क्या करते हैं ये लोग आगे। तो ये लोग नाउ यू ऑल ऑफ यू गॉट इट, इसलिए हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम। तो जैसे पी मेरे कस्टमर्स हो गए, या एलोकेशन मतलब ऑलरेडी कस्टमर्स के पास पैसे है, ये मैक्स कितना पैसा दे सकती है और बैंक के पास फिलहाल कितना अवेलेबल है। सो दिस इज द एंटायर स्टेटस। ओके उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, नीड। विल कैलकुलेट पहला तो भी नीड। सच में तुमको पैसे की जरूरत है, तुमने बोला आई रिक्वायर 2 लाख चाहिए, बैंक 2 लाख उठा के नहीं देगी क्योंकि बैंक के पास ही 3 लाख है। ठीक है तो बैंक क्या करेगी, पूछेगी कि सच में आपको है, ठीक है चेकिंग करेगी। ठीक है तो चेकिंग कैसे करती है, सच में चाहिए कि नहीं, चेकिंग ऐसे करेगी मैक्स माइनस एलोकेशन। मेरे पास तेरे को कितना चाहिए, मेरे पास कितना अवेलेबल है, मैक्स माइनस एलोकेशन। तो एक्चुअली वो हर कस्टमर का नीड ढूंढता है। ओके तो ये नीड ढूंढने के बाद नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन, उसके बाद वो क्या करती है, देन इट विल चेक तेरे हर एक को पैसे देने के बाद माय सिस्टम विल बी सेफ और नॉट, ये कैलकुलेट करती है। सेफ सीक्वेंस इसको बोलते हैं, सेफ सीक्वेंस। दिस इज 2। तो हम लोग कैसे करते हैं सेफ सीक्वेंस को, हर एक को पकड़ेंगे। नीड क्या है 743, अवेलेबल क्या है 332। ओके मैंने इसको क्या है, नीड ऑलवेज शुड बी क्या, लेस देन अवेलेबल। अगर है नहीं है छोड़ दो उसको, कस्टमर को बोलेंगे थोड़ी दिनों के बाद आपको पैसे देंगे, फिर उसके बाद वापस P2 के पास जाएंगे। अगेन नीड इज लेस देन अवेलेबल, यस ग्रांटेड। तो तेरे को मैंने पैसे दे दिया, तेरे से वापस जब मैंने पैसे दिया यानी मैंने तेरे को 332 दिया, लेकिन जब मैंने वसूली की तो मेरे को कितना मिला, ओके मेरे को कितना मिला 5। हमेशा याद रखना बैंक का पैसा बढ़ता ही जाता है, बैंक घाटे में नहीं जाता। अगर बैंक घाटे में जा रहा है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसमें मेरा बैंक घाटे में जा रहा था, अगर मैंने उसको अगर 743 पैसे दिया होता तो मेरा बैंक घाटे में जाता, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिमेंबर बैंक फायदे में ही जाता है, हमेशा उसका पैसा दुगना बढ़ता जाता है। ठीक है तो हर एक का मैंने चेक किया, P2 P3 P4 P5 एवरीथिंग आई हैव चेक्ड। ओके खत्म होने के बाद आप सबने P0 और P2 को वापस पैसे दिए, हेलो लास्ट में। Yes, ma'am. यस यस मैम। यस तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द, यू ऑल हैव टू राइट लाइक दिस, द सेफ सीक्वेंस इज लास्ट में। व्हाट इज द सेफ सीक्वेंस, पहले वाला किसको दिया हमने, ये देखो यहाँ पे P1 को, P1 P0 को रिजेक्ट कर दिया, P1 को पैसे दिए। ओके उसके बाद किसको पैसे दिए, P3 P3, उसके बाद P4 यस उसके बाद लास्ट में P0 एंड लास्ट में P2। बराबर आप लोगों को लास्ट में ऐसे ही लिखना है। रिमेंबर डियर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मैं कॉमा वगैरह नहीं लगाती हूँ, आपको हर एक के लिए कॉमा, नहीं तो 0 1 1 एंड 0,1,1 में बहुत अंतर है। डू नॉट यूज लाइक दिस। वो तो मैं जल्दी में कॉमा नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप सबने डालना है। इट इज डिफरेंट रिसोर्सेस। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे, वील बी गोइंग टू व्हाट, हाँ विल बी गोइंग टू द अनदर स्टेज। एक्चुअली ये आजकल नहीं पूछते, लेकिन 3 years बिफोर दे वर आस्किंग दिस ऑल्सो लेटर। थोड़ी मतलब बैंक ने हो गया ये सारा खत्म हो गया। थर्ड पार्ट ऐसा है, बैंक ने अगर फिर P1 आया, P1 वापस आ गया और P1 ने बोला यार मेरे को थोड़े और पैसे चाहिए, तो बैंक बोलता है अच्छा तुमको और पैसे चाहिए, ठीक है। इफ P1 रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल रिसोर्स 102 विल सिस्टम बी सेफ। सारे कस्टमर्स को देने के बाद वापस P1 बोलते हैं मेरे को और थोड़ा चाहिए, तो बैंक वापस ऐसे ही नहीं देती, पूरी कैलकुलेशन करती। कैसे करती है, रिक्वेस्ट फ्रॉम P1 क्या है 102, अवेलेबल मेरे पास कितना है, कितना अवेलेबल था मेरे पास पहले वाला, see here this is the sum I have written the same thing। अवेलेबल मेरे पास कितना था स्टार्टिंग वाला 332 था। ओके तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ, सच में तेरे को जरूरत है पूछ रही हूँ। तो तुम्हारा ओल्ड नीड क्या था, रिमेंबर ये हमने ऑलरेडी ओल्ड नीड पहले ही कैलकुलेट किया, तो वी आर गोइंग टू चेंज। ओके तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, नीड इक्वल टू ओल्ड नीड माइनस न्यू नीड। तुम्हारे पास पहले कितना नीड था, अभी तुमको और कितना चाहिए, कितना का डिफरेंस रहा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ओल्ड नीड, यानी रिमेंबर ओल्ड नीड इज 122 माइनस दिस न्यू, सो वी आर गेटिंग 020। ठीक है उसके बाद फिर बैंक ने अवेलेबल भी चेक करता है। अवेलेबल कैसे करेगा, करंट अवेलेबल कितना है, पहले ही प्रॉब्लम है 332, ठीक है। तो करंट अवेलेबल माइनस द रिक्वेस्ट,
या तेरे को पैसे देने के पास मेरे पास उड़ता है कि नहीं पैसा, मैं चेक करूंगी। तो करंट अवेलेबल इज इक्वल टू 332 माइनस 102, तो इसका माइनस करके 230। ओके, तो मैंने क्या किया, इसका नीड जो है वो मैंने नीड कैलकुलेट किया, यहाँ पे मैंने नीड लिख दिया। ये मेरा नया अवेलेबल है वो मैंने लिख दिया। मैं सिर्फ चेक करती हूँ, इफ नीड इज अवेलेबल देन नीड इज लेस देन अवेलेबल, मेरी नीड इज लेस देन अवेलेबल, यस नीड इज लेस, तो अपन क्या करते हैं, पैसे देने के बाद मेरा ब्याज कितना पड़ता है 430, यस द सिस्टम इज सेफ एंड P1 इज ग्रांटेड इमीडिएटली। यानी मेरे को पैसे देने के बाद मेरी सिस्टम में 0 तो नहीं होती, फायदा हो रहा है, तो मैं इसको ग्रांट करती हूँ, तो मैं इस P1 को बाद में जाके इमीडिएटली पैसे दे सकती हूँ। समझा आप लोगों को इसको कैसे कैलकुलेट करते? ओके, what I'm going to do, I'll take a pic of this, and I'm going to send you in this maps. This camera, huh? Okay, I'm just okay, so I'm going to send it to you. Okay, I'm going to send it to you. So what you're going to do, इसको आप solve करेंगे. I'm just sending it to you. Someone has sent me. अरे कितना गंदा फोटो है. Who has sent me? Chaitanya has sent me. We will read it, okay? Because this question is very important. Everybody will read this. What is the difference between deadlock avoidance and? Okay, so I'm going to do it. Yes, I'm sending to you all. See here, ये वाला problem मैं send कर रही हूँ. Okay. Okay, so I have sent it. Now everyone. Now I'm going to give you a very good homework because ये 3 times continuous question paper में पूछा गया. Everyone start with it. मुझे need बताओ. Who is going to tell me? 61 बच्चे आए. मयूर गायकवाड़, roll number 9. You were going to tell me the need. है ये बच्चा है यहाँ पे? Yes. Yes, ma'am. Yes. Mayur, Yes. tell me, calculate. Everybody calculate the need and tell me. I want the need का table. I want Max minus allocated. yes, max minus allocation. चलो मुझे बताओ. Allocated. ये देखो यहाँ पे 6 marks के लिए, 3 marks need के लिए और 3 marks system safe के लिए. Yes. So what is need? कितना है? 0. Okay. A, B, C. Need P0, P1, D. P2, D, P3 and P4. Okay, बताओ मुझे need क्या है? Yes. मैं इधर सामने आ गई. Ma'am, P0 all 0. Okay, everybody, yeah, he is telling, and I'm not even looking at the answer. Just everyone, is he correct? Okay, tell me. उसके बाद. 0 ma'am, D0. हाँ, तू बता. Yes. प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मैम, थोड़ा ऊपर करो क्या? अच्छा, तुम अपने इसमें करो ना फटाफट. मैम एग्जांपल लिखा नहीं था. अच्छा लिखो, आप लोग सब लोग एग्जांपल लिखो. I'm giving you 5 minutes time because this is only one example. Come on, मैं आप सबको टाइम दे रही हूँ. चलो, सॉल्व करो. Everybody, note it down. दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yeah. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही? Everybody can see the screen? Yes, मैम ma'am. नहीं दिख रही. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You ping it on right now. Everybody is able to see. Why you are not able to see? मैम जिसका माइक ऑन है ना उनका ही ये दिखता है स्क्रीन पे. अरे मेरे यहाँ पे जाके पिन करो, यहाँ पे जाके पिन करो. एवरीबॉडी यू हैव टू गो और मेरे स्क्रीन पे जाके डबल क्लिक कर. इतना काम कर.
Yes, everybody is doing it. मैम स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही. Oh my God. Okay, forget it. यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन पेपर का जो है वो क्वेश्चन पेपर मैं वहीं पे जाती हूँ, so that everybody can see. Timetable deadlock. Everybody has noted it. Other students, yes. मैम लिख रहे थे उसमें आपने चेंज कर दिया. क्या करूँ, कुछ बच्चों को दिख ही नहीं रहा, कुछ बच्चों को दिख रहा है, तो मैं this is all, you know, little bit. ये सारा मेरे को क्या होता है, this is all थोड़े से problems होते हैं. Yes, now you everybody can see this problem. अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5A 6. Yes, ma'am. Yes, everybody copy it. Okay, you're solving it, right? Now I'll just go. जिसको भी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी, आपने क्या करना है, मेरे स्क्रीन पे जाके 2 टैप करना है, वो मेरी स्क्रीन लॉक हो जाएगी. सो एवरीबडी कैन सी इट. क्लियर? बहुत सारे बुक्स है. Yes. So everybody has got this need. आप सबको दिख रहा है, ये नीड आपको आ गई. 000 P1 is 0750 1002 0020 and 06420. Just imagine you do this and you get 3 marks. So easy to score. ये total problem आता है INSEM के पेपर में ही आएगा and that is for 3 marks. Yes. सबको आ गया ये आंसर? Hello? Yes, ma'am. Yes, superb. Now we will go for what? Yes, ma'am. Yes. Now I want, who is that? Okay. Rajeshri Thoke. Rajeshri Thoke is there? Hello. Hello. Okay. Now I just want P0. Everyone go for P0. Now we are going for the second step. Check for system safe or not. P0. Check for P0. क्या है उसका नीड, क्या है P0 का? एनीवन? यस, मुझे ना एक काम करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट को पूरा पूछती हूँ. किरण गायकवाड़, आर यू देयर? यस मैम. हाँ, चलो इसका नीड क्या है? P0. नो वी आर चेकिंग फॉर सिस्टम सेफ. नीड क्या है? एवरीबडी यू आर गोइंग टू ड्रॉ फॉर इन एग्जाम वेरी नाइसली. यू आर गोइंग टू सॉल्व इन एग्जाम. बिल्कुल गड़बड़ नहीं, अच्छे से लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, आपको सॉल्व करना है. यू विल गेट कंप्लीट 3 मार्क्स. ओके, उसके बाद बताओ. यस, सेकंड आपको लिखना है चेकिंग फॉर सिस्टम सेफ और नॉट. P0 नीड क्या है? 4 times 0 मैम. यस, 0,0,0. एवरीवन कॉमा लिखना. अवेलेबल क्या है? 1520. यस. नीड इज लेस देन अवेलेबल है. इज नीड लेस देन अवेलेबल. हर एक का देखना है, हर एक का, हर एक डिजिट्स का देखना है. यस. तो न्यू अवेलेबल कितना होता है? न्यू अवेलेबल क्या है फॉर्मूला? 1520. हाँ, एलोकेशन प्लस अवेलेबल. ओके, क्या है आंसर? 1520.
नहीं रे, न्यू अवेलेबल सांग ना डायरेक्ट. मैम वही आएगा ना, ऊपर का 0 0 है ना सर. हाँ मैम, नहीं एक मिनट. नहीं. अलोकेशन काय है? अलोकेशन इज 0012. 0012 Available is 1520. 1532 Yes, 1532. 1532. 1532 Superb. Yes. So P0 is done. Okay. Now I'll ask another student here. प्रसाद बडवर. आफ्टर लॉंग टाइम आहे की नाही, कधीच रेंज मध्ये नसतो हा मुलगा. प्रसाद बडवर. हॅलो. नसतं. He's never at the range. Siddhant Parikh, roll number 40. Hello. Hello. Who is there? Siddhant आहे. Roll number 15. Neha. Yes, dear. Neha. See, the students are not there. I'll cut the roll number now. The students nahi hai. Roll number 15 nahi hai. So I'm going to cut the roll number. So roll number 15 nahi hai. Prasad Badwar, are you there? Nahi, Prasad par nahi. Kaun? Who said yes, ma'am? Acha, Prasad ahes tu. Prasad patkari sang mala. What is the answer for P1? P1 चलेगा क्या? P1 का need क्या है? आप लोग 0750 0. करेक्ट. अवेलेबल काय आहे माझ्याकडे? 1532 सुपर्ब. करेक्ट. ओके, एक मिनिट हा. 1532. करेक्ट. त्याच्यानंतर इज नीड लेस देन अवेलेबल. इज नीड लेस देन अवेलेबल. हो की नाही? So यहाँ पे request is need visible? No. So request not granted. Okay. Now I'll go for another one. P2. मुझे P2 कौन बताएगा? Krishna, BC Krishna, are you there? Yes, ma'am. Yeah, Krishna, go for P2. बताओ तुम. What is P2 का Need P2. need क्या है? 1302. 13. नहीं रे. P2 ना रे. Need ना ma'am. हाँ, P2 का need है ना ma'am. हाँ तो 1002 ना. नहीं मैम 1354 1002 है मैम. Then what are you saying? yes मैम 1002 है. Then Krishna, where are you? 1002 आपका ध्यान नहीं था. Krishna, you have to go. This is the need for P2, dear. 1002. ये मेरा need है. Yes, 1002. Then Yes, yeah, ma'am. that's what I was wondering. Okay, 1002. Okay, उसके बाद available कितना है? 1532. 1532. आप लोग प्लीज कॉमा लिखिए, मैं नहीं लिखने वाली because time नहीं. Okay, so is need less than available? Yes. Yes. New available direct answer बताओ. New available का आंसर क्या है? Allocation plus available. हाँ. 1354 plus 1532. आंसर बताओ. 2886. 2886. Is he correct? Is Krishna correct? Everyone? yes Yes. Okay. So we'll go for yes. We'll go for P3. Yes, Nidhi. Now I want you to tell. Nidhi, आप हो यहाँ पे? हाँ मैम हाँ. P3 का नीड बताओ क्या है? 0020 0020. Okay. अवेलेबल क्या है? 2886 2886. Is need available? Need less than available है? 2886 हाँ. Need available है यहाँ पे? नहीं मैम. Need less than available? Hey ma'am. Yes. yes मैम. Then, Yes हाँ ma'am. है. then what is new available? Only Nidhi, you tell. What is new available? New available क्या है? 214 11 8 2, 14, 11, 8. Yes, correct. Okay. अभी मुझे डायरेक्टली P4 का आंसर बताओ. Can I go everyone? Can I go directly now? Because I really don't have time. Can I go directly now? P4 का मुझे new available मिलेगा या नहीं? Who is going to tell me? Directly students. yes मैम. Mayur Gaikwad.
अगेन आई एम आस्किंग, मयूर गायकवाड़ मुझे दिख नहीं रहा। हेलो, यस मैम। P4 बताओ मुझे, डायरेक्ट वैल्यू बताओ, न्यू अवेलेबल क्या, डायरेक्टली आंसर बताओ। Who is going fast? Anyone? अमृता संत। 2, 14, 12, 12. यस 2, एक मिनट मैं यहाँ पे कट करती हूँ। 2, 14, 12, 12, करेक्ट। 2, 14, नो, एवरीवन, इज दिस आंसर करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2, 14, 12, 12, करेक्ट, ओके। आफ्टर दैट विच वन वाज लेफ्ट? किसको हमने रिजेक्ट किया था? P1 को हमने क्या किया? P1. Reject किया। यस, तो अगेन यहाँ पे लिखना है, अगेन फॉर P1 कैलकुलेशन चल रहा है, उसका नीड क्या है? 0750। अवेलेबल कितना है? अभी फ्रेशली अवेलेबल बहुत ज्यादा पैसा है मेरे पास, 2, 14, 12, 12, ओके, 2, 14, 12, 12। अभी न्यू एलोकेशन कितना हो गया? यस, न्यू एलोकेशन कितना आंसर आता है? What is 2, your 14, 13, 14. हाँ? 2, 14, 13, 14. 13, 13, 14. Everybody, did you get this answer? Yes? Is she correct? Whoever is she, जिसने बताया आंसर करेक्ट है? 3, 14, 12, 12. हाँ, it is actually the answer is yes. 3, 14, 12, 12. Even I got the same answer. See here, this answer is here. Okay. 3, 14, 12, 12. Yes, मुझे कौन बताएगा सही कौन है? Who will tell me? गायत्री 16। Yes, ma'am. 3, 14, 12, 12. हाँ, किसने बताया ये मुझे पहला वाला रॉन्ग आंसर? Why did you say this wrong? एक भी रॉन्ग हो गया आपका, एक एक मार्क। Ma'am. Sorry, ma'am. Yes, new allocation or new available equivalent to 3, 14, 12, 12. क्या ये सबको मिल गया आंसर? Everyone? Yes, ma'am. Yes. Now how are you going to write? Yes. आप लोग अभी कैसे लिखोगे? System is safe, है ना? System is safe. Sequence, everyone write like this. System is safe. Sequence is पहला वाला P0, okay? उसके बाद P2, P2, उसके बाद P3, उसके बाद P4, लास्ट में आया P1, like this. You have to finish it. Then after entire this calculation, आपको पूरा 3 मार्क मिलता है. So you are out of 6 out of 6 मिल जाएगा. Clear dear? Yes, easy ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अभी एक क्वेश्चन पेपर में जो एक बैकलॉग का, रिमेंबर बैकलॉग का ओएस का पेपर थोड़ा टफ आता है, सो डू नॉट हैव अ बैकलॉग, ओके। एक क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन दिया, लेकिन उन्होंने तीसरा वाला भी पूछा कि इफ P1 अराइव्स 0420 इमीडिएटली, उसको और थोड़ा पैसा चाहिए, कैन द रिक्वेस्ट बी इमीडिएटली ग्रांटेड? ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन लिखो आप, only in one paper it was asked. If P1 arrives 0420, can the request be immediately granted or not? Yes. अब मुझे आप कैसे तरीके से बताओगे? Who is going to have? See, ये तरीका है, ओके, ये तरीका है, लेकिन ये पहले वाले प्रॉब्लम का है। अभी आप नया प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओगे। Who is going to tell me? Yes. बच्चे कम होते जा रहे, 51. Why like that? रोशनी बोरा, रोल नंबर 80, आर यू देयर? Yes, ma'am. यस, रोशनी, अभी आप और मैं सॉल्व करेंगे। ये बताओ मुझे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इफ P1 आया, इफ P1 रिक्वेस्ट किया, P1 ने रिक्वेस्ट कैसे किया है, कितना ज्यादा पूछा है? 0420, ओके। उसने बोला कि मेरे को और पैसे चाहिए, तो क्या मैं दूं कि नहीं? दिस इज व्हाट द बैंक इज गोइंग टू चेक। रिक्वेस्ट फ्रॉम P1 कितना आएगा इधर? एवरीवन स्टार्ट राइटिंग। रिक्वेस्ट फ्रॉम P1 कितना आएगा? 0420, यस, रिक्वेस्ट फ्रॉम P1 इज 0420, करेक्ट। अभी अवेलेबल कितना है मेरे पास? ओरिजिनल अवेलेबल बताना है। ओरिजिनल अवेलेबल कितना है मेरे पास? 1520, बराबर। आप सब लोग लिख रहे हैं? यस,
Yes, ma'am. Yes, request from P1 is request, Naya request is 0420. I'm not writing because I want you to write, I want you to solve. And available कितना है, पहला वाला available कितना है मेरे पास 1520, right? 1520 लिखा आप सबने? Yes, ma'am. Yes. अब उसके बाद नया नेक्स्ट वन, नीड इक्वल टू ओल्ड नीड माइनस न्यू नीड. ओल्ड नीड कितना था? हु इज गोइंग टू टेल मी? P1 का ओल्ड नीड 0330. 0750. Sorry. 07, yes, exactly. 0750 minus नया नीड 0420. yes. So नया नीड क्या आया? नया नीड क्या आया? 0330. 0330 सबको आया? Everybody is getting it? Yes, ma'am. प्रसाद, are you able to get it? यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ इस बुक पर. Okay, because ये पूरा तरीका ऐसे ही लिखना है एग्जाम में. That's why I'm solving it here. Yes, P1 का क्या है रिक्वेस्ट? What is the request of P1? 0420 बराबर. Yes, what is the request of available? What is the available? Available कितना है रे मेरे पास? 1520. ओके. नया नीड क्या है? नीड इक्वल टू, सच में तुमको चाहिए कि नहीं? तो ओल्ड नीड माइनस न्यू नीड. क्या है आंसर? 0750 माइनस 0420. 420. क्या ये सबको आ गया? 0330. ये सबको आ गया? सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. So what is available now? आगे Yes, आगे ma'am. Yes, आगे बढ़ो. Available is equal to current available minus request. Available करेक्ट करते हैं. बैंक खुद भी चेक करता है कि है कि नहीं, मेरे पास करंट अवेलेबल है कि नहीं. यस. सो व्हाट इज अवेलेबल? बताओ मुझे. हु विल टेल मी? करंट अवेलेबल 3 14 12 12. 1520. नहीं रे, जो पहले करंट अवेलेबल यानी वो पहला वाला ही लेना है आप लोगों को. 1520. Yes. So don't please get confused. 1520 minus request. कौन सा रिक्वेस्ट है अपना? ये देखो यहाँ पे 102, तो ये न्यू रिक्वेस्ट. 0330. 033 नहीं रे, 102 न्यू रिक्वेस्ट ना. 033 से आया है? नहीं रे, 0420 से आया है ना वो. करेक्ट? Yes? Yes, ma'am. हाँ. So what is the answer? 1100. 1100. 1100. Yes. ये मेरा करंट अवेलेबल है. ओके, ये मेरा करंट अवेलेबल है. अभी मैं डायरेक्टली सिर्फ इतना चेक करती हूँ. इज नीड ऑफ P1, इफ नीड ऑफ P1 इज लेस देन अवेलेबल, चेक कर रही हूँ है कि नहीं. एनीवन? नीड ऑफ P1 इज लेस देन अवेलेबल है. Yes. Okay, how are you saying yes? कैसे? No, No, ma'am. ma'am. No. No, ma'am. बेटा नहीं है मैम. ये देखो भाई, No, ma'am. 30. लेस देन 1100. मैंने आपको यही ऑलरेडी बोला ना, एक एक का देखना है. तो अवेलेबल नहीं है, सॉरी. यहाँ पे डायरेक्टली लिक्विड P1 इज नॉट अलाउड इमीडिएटली. नहीं देंगे पैसे. तेरे को देने के बाद मेरा 0 हो जाता है, मेरा माइनस में चला जाएगा. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yes. यस. Yes. एवरीबॉडी Ma'am. प्लीज इसको प्रॉपर्ली लिखो आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है. ये पहले P1 ने रिक्वेस्ट किया, अवेलेबल ओरिजिनल